Hello students. So in this video we are going to cover the topic necessary conditions for deadlock, and we will study all the four conditions. After that we will go for the strategy for handling deadlocks, and let's start this four types of conditions. So the first one is mutual exclusion. So what is mutual exclusion? In this, a resource can only be shared in mutually exclusive manner. That means if two process cannot use the same resource at a time. क्योंकि जो डेडलॉक का कंडीशन हो रहा था वहाँ पे क्या था कि कोई भी दो प्रोसेस को एक ही रिसोर्स का ज़रूरत पड़ रहा था, सो दैट इन दैट केस द प्रोसेस गॉट ब्लॉक. बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इफ़ टू प्रोसेस कैन नॉट यूज़ द सेम रिसोर्स, मतलब एक ही रिसोर्स को दो प्रोसेस एक बार में नहीं यूज़ करेगा, तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूशन है. द सेकेंड वन इज होल्ड एंड वेट. तो अ प्रोसेस वेट्स फॉर सम रिसोर्स वाइल होल्डिंग अनदर रिसोर्स एट दैट टाइम. तो ये जो लास्ट एग्जांपल हम लोग देखे थे P1 P2 P3 एंड R1 R2 R3, तो P1 क्या कर रहा था, P1 R1 को होल्ड किया हुआ था एंड इट इज़ वेटिंग फॉर R2. मतलब प्रोसेस 1 जो था वो रिसोर्स 1 को होल्ड करके रिसोर्स 2 का वेट कर रहा था, जबकि रिसोर्स 2 क्या कर रहा था, प्रोसेस 2 क्या कर रहा था, इट वाज होल्डिंग द रिसोर्स 2 एंड रिसोर्स 3. तो इसी तरह का होल्ड एंड वेट होता है, तो इस केस में भी ये डेडलॉक होता है. द थर्ड वन इज़ नो प्रीएम्पशन. So the process which once scheduled will be executed till the completion. The process which once scheduled will be executed till the completion, and no other process can be scheduled by the scheduler meanwhile. मतलब अगर कोई एक प्रोसेस को हम लोग CPU में डालें तो नो प्रीएम्पशन, मतलब ये बाहर नहीं निकल सकता अनटिल एंड अनलेस इट विल कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन. कंप्लीट नहीं होता तब तक ये बाहर नहीं आ सकता, और इसी टाइम पे कोई भी दूसरा प्रोसेस को शेड्यूल नहीं किया जा सकता. ठीक है, ये थर्ड नो प्रीएम्पशन. एंड द फोर्थ वन इज सर्कुलर वेट. तो सर्कुलर वेट ऑलरेडी वी हैव स्टडीड. सो ऑल द प्रोसेसेस मस्ट बी वेटिंग फॉर द रिसोर्सेज इन अ साइक्लिक मैनर, so that the last process is waiting for the resources which is being held by the first process. So this was the circular weight. This was the example of circular weight. यहाँ जो लास्ट प्रोसेस है P3, ये फर्स्ट रिसोर्स का वेट कर रहा है R1 का, तो इसी तरह से ये सर्कल बन गया. ठीक है. So these were the four necessary conditions for deadlock. Let's see strategies for handling deadlock, how we can handle deadlock and reduce the inconsistency. So the first one is deadlock ignorance. मतलब deadlock हुआ, हम ignore कर दिए. So how we can do that? So deadlock ignorance is the most widely used approach among all the mechanism, and this is being used by many operating systems, mainly for end user usage. And in this approach the operating system assumes that deadlock never occurs and it simply ignores deadlock. मतलब deadlock हुआ भी तो हम the operating system what it do, it thinks that it assumes that कभी deadlock हुआ ही नहीं, केस हमको आगे चले जाना, it will move forward. And this approach is best suitable for a single end user system where user uses the system only for browsing and all other normal steps. तो यहाँ पे अगर कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स जॉब नहीं है तो वी कैन यूज़ दिस डेडलॉक इग्नोरेंस. सो ये एक पहला केस है डेडलॉक हैंडलिंग का. एंड देयर इज़ ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ मतलब बातचीत, और वी कैन से दैट एक समझौता बिटवीन करेक्टनेस एंड परफॉर्मेंस. सो द ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़ एंड लिनक्स मेनली फोकसेज अपॉन परफॉर्मेंस, and however the performance of the system decreases if it uses deadlock handling mechanism all the time. if deadlock happens 1 out of 100 times, मतलब हर 100 में से अगर एक डेडलॉक होता है और उसको अगर हम हैंडल करने के लिए वेट करेंगे तो ये क्या होता है, परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज़ होता है. क्यों? क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम हम प्रॉब्लम सॉल्व करने में दे रहे हैं, हम आउटपुट में नहीं यूज़ कर रहे हैं. मतलब 100 प्रोसेस है, 100 प्रोसेस में हम एक सॉल्व करने जा रहे हैं. ठीक है. So then it is completely unnecessary to use the deadlock handling mechanism all the time. And in these types of systems the user has to simply restart the computer in case of deadlock, and Windows and Linux are mainly used using this approach. तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि our system gets hanged. So what is that hang? वहाँ पे क्या होता है कि हम अगर VLC मीडिया चला रहे हैं और we are वर्किंग ऑन सम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड द पावर पॉइंट गॉट क्रैश, तो वो क्रैश नहीं करता, वो किसी एक रिसोर्स का वेट करता है जो रिसोर्स किसी दूसरे जगह पे यूज़ हो रहा है. और फॉर
a long period of time it is not getting that resource, तो वो क्या होता है स्क्रीन को ब्लैंक कर देता है, होल्ड कर लेता है. सो इन दैट केस हम लोग विंडोज़ एंड लिनक्स में क्या करते हैं, वी सिंपली पावर ऑफ द सिस्टम एंड अगेन वी रीस्टार्ट द सिस्टम. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रैटेजी टू हैंडल डेडलॉक, दैट इज़ कि इग्नोर कर देना. वी इग्नोर द थिंग्स, द डेडलॉक. द सेकेंड वन इज़ डेडलॉक प्रिवेंशन. सो इन दिस केस वी सी हाउ टू प्रिवेंट द डेडलॉक. मतलब जो हो गया डेडलॉक, अब उसको हम कैसे रोक सकते हैं, मतलब कि ना हो. So deadlock happens only when mutual exclusion, hold and wait, no preemption and circular wait hold simultaneously. ये चार चीज़ जो होता है simultaneously अगर होता है तो then only deadlocks will occur. So if it is possible to violate one of the four condition at any time, then the deadlock can never occur in the system. मतलब इन चार में से किसी एक को भी अगर हम रोक दें, if we will stop any of the four conditions, then the deadlock will never occur. So the idea behind this approach is very simple, that we have to fail one of the four conditions, but there can be a big arguments on its physical implementation in the system. मतलब इन चार को अगर हम किसी को एक को रोकने जाते हैं तो इसका effective और जो हम बोलते हैं साइड इफेक्ट, that is also being there. So most of the cases हम ये वाला यूज़ नहीं करते. We do not use this prevention by locking or blocking any of the four conditions. So the third one is deadlock avoidance. In this we want to, or we think that we avoid the deadlock, मतलब जितना ज़्यादा यूज़ करें हम लोग अवॉइड करने का. So in deadlock avoidance, the operating system checks whether the system is in safe state or in unsafe state. So at every step which with the operating system performs. तो जहाँ पे भी हर एक स्टेप और स्टेट्स में हम लोग हैं, the operating system will check for the performance of the operating system, performance of the deadlock, कि कौन सा resource कहाँ मिल रहा है and we are getting or not. So the process continues until the system is in safe state, and once the system moves to unsafe state, the operating system has to backtrack one step. इसमें क्या हो रहा है, इसमें स्टेप वाइज या स्टेट वाइज हम लोग चल रहे हैं और वन स्टेप हम लोग फॉलो कर रहे हैं. एंड अगर हमको लगता है कि इस स्टेट में हम लोग को डेडलॉक मिला, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया, तो हम क्या करते हैं, एक स्टेप बैक चल जाते हैं. दैट मीन्स हम फिर से नॉर्मल स्टेट पे आ जाते हैं. अब यहाँ से हम कुछ दूसरा मेथड यूज़ करेंगे, और दूसरा मेथड अगर नहीं यूज़ करते, वी कैन ऑल्सो यूज़ दिस सेम मेथड. और सेम मेथड में नेक्स्ट टाइम चलने का प्रोबेबिलिटी क्या रहता है कि एट द फर्स्ट टाइम अगर कोई रिसोर्स किसी दूसरे प्रोसेस पे होल्डेड है, तो अभी सेकेंड टाइम में वो इसको मिल सकता है. दैट मीन्स अगर वहाँ का काम खत्म हो गया तो वो रिसोर्स बैक टू द पोजीशन आ गया, तो यहाँ पे आ गया, तो इट कैन बी यूज. सो इन सिंपल वर्ड्स, द ऑपरेटिंग सिस्टम रिव्यूज ईच एलोकेशन सो दैट द एलोकेशन डज नॉट कॉज द डेडलॉक इन द सिस्टम. तो द एलोकेशन विच आर देयर इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ बीइंग यूज्ड इन each and every turn and each and every state. So let's move on to the last one, that is the deadlock detection and recovery. So अभी तक हम क्या करते हैं, प्रिवेंट कर रहे थे और अवॉइड कर रहे थे. वी वर अवॉइडिंग एंड प्रिवेंटिंग द डेडलॉक टू हैपन. बट अगर डेडलॉक हो जाता है, सो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू परफॉर्म सम रिकवरी मेजर्स टू रिमूव दैट डेडलॉक. सो दिस अप्रोच लेट द प्रोसेस फॉल इनटू डेडलॉक. मतलब पहले डेडलॉक हो जाने देते हैं एंड देन पीरियोडिकली चेक वेदर डेडलॉक अकर इन द सिस्टम और नॉट, एंड इफ इट अकर्स देन इट अप्लाइज सम ऑफ द रिकवरी मेथड्स to the system to get rid of deadlock. So what are the recovery methods? We will study it in the upcoming topics. So that's all for today, and these were the 4 types of deadlock handling strategies. So thank you.